और पोर्शन भी भेजो. आई थिंक डेफिनेशन होगा, एनालिसिस टेबल और अकाउंटिंग इक्वेशन. second chapter. फर्स्ट और सेकंड चैप्टर. Sir, if she expects us to write revenue instead of income. बट वो सबने बोला है, पता है, सुप्रिया वाला. खाली सुप्रिया ने बोला है, I don't know. रौशन ने नहीं बोला है. सबने बोला है ना, उसको पूछ लेना कि इनकम लिखेंगे तो मार्क्स काटेंगे क्या, ऐसा. और कैपिटल पता नहीं सबका क्यों फटता है, बात ही नहीं करते उसके. और ही अलग है उसका. हाँ, sir. Where if she remembers my roll number, she's gonna make me like money. Oh really? इधर आ काव्य आ गया. एक दिन पीछे बैठने का मिला है. कहाँ मिला है? नहीं मिला है. आ गया. सर वन डे तुमको चाह भी लूंगा. टेस्ट में मार्क्स आएगा उसके बाद देखेंगे. आगे बैठो. ठीक है, फर्स्ट चलो. लिसन नाउ. होमवर्क चेक कर लो पहले. चेक. पहले तो ओपनिंग एंट्री करना था, वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक वाला बता रहा हूँ मैं. कैश अकाउंट डेबिट 35,000, बैंक अकाउंट डेबिट 25,000, फर्नीचर डेबिट 1,50,000, लैपटॉप डेबिट 1 lakh, डेटर्स डेबिट 70,000, टू क्रेडिटर्स 50,000, टू बैंक लोन 50,000, टू कैपिटल हाउ मच? 2,80,000. 2,80,000. 280,000. 2,80,000 is your capital. बढ़िया. Purchase goods from Ajay Kumar worth 2,50,000 at 10% TD, 18% GST. 1/4 of the amount paid in cash. So this was partly cash, partly credit with GST. पहले तो 2,50,000 का 10% which is 25. So you get 2,25,000. 2,25,000 पे 99% CGST, SGST, which comes to how much? 20,250, 20,250. वो ऐड करो तो आपको मिलेगा 2,65,500. 2,65,500 में 1/4 कैश and 3/4 credit. 66, 375 is cash and 199, 125 is credit. तो एंट्री होगा आपका परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, सॉरी परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट CGST, इनपुट SGST टू कैश टू अजय. That's it. To cash to Ajay. No C. तो परचेज अकाउंट डेबिट आएगा 2,25,000. इनपुट आएगा 20,250 टू कैश 66,375 एंड टू अजय 199,125. मिला? आया? क्या होमवर्क? किया गया. चेक करो. Purchase shares of Infosys of 50,000, paid 500 as brokerage. It is investment in shares of Infosys account debit to bank 50,500. Investment in shares चलेगा या NM के लिए investment in shares of Infosys account debit to bank account 50,500. मिला? Sold goods to Raj worth 90,000 at 10% TD. 1/3 of the amount received by cash, 5% CD is allowed. So partly cash, partly credit था. 90,000 का 10% is 9. Net is 81. 81 का 1/3 is 27. 2/3 is 54.
1 third 27 by 5% is 1350. Net amount is 25650. Entry should be cash account debit, discount allowed debit, Raj debit to sales. Cash debit 25650, discount allowed 1350, Raj debit 54,000 to sales 81,000. 81. आया? हाउस रेंट ऑफ प्रोप्राइटर एंड ऑफिस रेंट दोनों अलग अलग है. ड्रॉइंग्स रेंट टू कैश. ड्रॉइंग्स 9, रेंट 5 to cash 14,000. मिला? And laptop purchase and paid by GST. So laptop input to bank. Laptop में आएगा 60,000. Input CGST 5,400. Input SGST 5,400 to bank 70,800. Transport charges on the above laptop. Above laptop मतलब खरीदने पे हुआ है. तो वापस laptop input to cash. क्योंकि लैपटॉप पे हुआ है. तो लैपटॉप इनपुट टू कैश. लैपटॉप 1,000. इनपुट 900 टू कैश 90 my bad. 1,000 90 and to cash will be 118. दोनों लैपटॉप ही है. लैपटॉप तो लैपटॉप ही है. उसमें ट्रांसपोर्ट चार्जेस भी लैपटॉप ही क्योंकि खरीदते वक्त हुआ है. तो add up with the cost of laptop. Paid commission to Ram. It is commission to cash 20,000. Telephone charges का entry is telephone charges to cash 1,000. Transfer from private bank to business bank, so it is bank to capital 40,000. मिला? Bought goods and paid GST. So purchase input to bank. मिला? So purchase account debit will be 1,50,000. Input CGST 9,000. Input SGST 9,000 to bank 1,68,000. Yes. Is that right? Exchange of furniture of 30,000 for motor car of the same value. मतलब motor car आया, furniture गया. So motor car to furniture 30,000. Motor car to furniture 30,000. You got that? Yes, which one? 28. Private bank से business bank. Bank to capital. Bank to capital. Got it? Motor car to furniture. Motor car आया, furniture गया. मोटर कार आया, फर्नीचर गया. अभी एक और सम था ना होमवर्क अपने नोट्स का था, वो राक्षस था. चेक कर लो. I think it was sum number 33. Check. पहले तो ओपनिंग एंट्री आएगा. कैश अकाउंट डेबिट 5,000, बैंक अकाउंट डेबिट 95,000, बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट 2,10,000, फर्नीचर डेबिट 15, डेटर्स डेबिट 10, टू क्रेडिटर्स 10, टू बैंक लोन 28, टू कैपिटल 2,97,000 आया. 2,97,000 इज योर कैपिटल मिला. देन परचेज गुड्स फॉर कैश less DD दिया ही नहीं है, assume it is nil. So purchase to cash 30,000. Purchase to cash 30,000. Is that right? Sold goods to Meena. So it is Meena to sales to output. Meena account debit में कितना आ रहा है? 29,500. To sales 25,000. To output 2250. Is that right? Yes. Purchase goods from Seema. So purchase input to Seema. Purchase में आएगा 12,000. Input 1080 and to 14,160. Seema it is 14,160. मिला? Goods costing 1,100 distributed as free samples. That's advertisement to purchase which is 1,100. Advertisement to purchase which is 1,100. Got that? Hello? Yes, sir. Received an amount of 1,500 from Vikram which was previously written off as bad cash to bad debts recovery. Cash to bad debts recovery 1,500. मिला? Purchase goods from Bhushan 30,000, 1/3 after CD, GD, GST सब कुछ है. पहले 30,000 पे 10% is 27. 27 पे 6% is what? 1620. Added up you get 30,240. 30,240 का 1/3 is 10,080 and 20,160. बराबर है. 10,080 पे CD लेना है 5%. लेकिन 10,080 पे नहीं ले सकते. आपको 27 का 1/3 9,000 का 5% 450 है. तो 10,080 माइनस 450 9630 आएगा. तो एंट्री होना चाहिए. ध्यान से सुनना. परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू भूषण टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव.
Purchase account debit 27,000. Input CGST debit 1620. Input SGST 1620. To Bhushan 20160. To cash 9630. To discount received 450. Is this clear? समझ में आया? ये वाला important था. Purchase input to cash to Bhushan to discount received. Okay. Purchase 27. Input 1620. To cash 9630. To discount received 450. To Bhushan 20160. Received cash gift from father-in-law from which he purchased shares for Infosys. So investment in shares to capital, not bank. Investment in shares to capital. पहले भी आया था. क्यों capital? घर से आया तो कैपिटल. पेमेंट ऑफ बैंक लोन विद इंटरेस्ट 6000. दोनों साथ में बैंक लोन प्लस इंटरेस्ट चाहिए था. 4.5 का लोन है, 1500 का इंटरेस्ट है. एंट्री होगी बैंक लोन डेबिट, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन डेबिट टू बैंक. बैंक लोन 4500, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन डेबिट 1500 टू बैंक लिखना, नॉट कैश. बाय तो 6000 टोटल है. 6000 टोटल है. 6000 टोटल है. It is not 6000 plus 1500. It is 6000 में 1500 पड़ा है, तो 4500 plus 1500. ओके, विद इंटरेस्ट दिया था ना इसके लिए. तो बैंक लोन डेबिट 4500, इंटरेस्ट डेबिट 1500 टू बैंक विल बी 6000. बैंक लोन इंटरेस्ट के लिए बैंक लिखना आया. सोल्ड गुड्स, ये भी राक्षस था. 50,000 10% टीडी, हाफ कैश, डिस्काउंट, जीएसटी. तो पहले 50,000 पे 10% इज 5, नेट प्राइस इज 45. 45 पे CGST, SGST is 6%, which is 2700. Perfect. So you get 50,400. 50,400 का 1/3 is what? 25 Half है. Sorry, half. 25,200, 25,200. 25,200 पे CD लगाएगी. 25,200 पे नहीं करना है. 22,500. 22,500 का 5%. 1125 आएगा. 1125 CD. 25,200 minus 1125 will give you 24,075. 24,075. Entry should be cash account debit, discount allowed debit, Anil debit to sales to output to output. Cash account debit 24,075. Discount allowed debit 1125. Anil debit 25,200. Hello. To sales 45,000. To output will be 2,727. Is this clear? Did I repeat? Cash account debit 112. Cash account debit 24,075. Discount allowed debit 1125. Anil debit 25,200. To sales 45,000. To output 2,700. Amount due for advertisement. Outstanding advertisement. It is advertisement to outstanding advertisement. Advertisement to outstanding advertisement 5,000. What is this? I'll explain immediately. Withdrew cash from bank for personal purpose. So it is drawings to bank. Drawings to bank. Bank से निकाला. Drawings to bank. बैंक का नाम आ गया तो बैंक. ऐसे withdraw किया तो drawings to cash. So drawings to bank 2,000. Drawings to bank 2,000. अब वो एडवर्टाइजमेंट वाले पे फोकस करो. ये मैं आपको नया कंसेप्ट बता रहा हूँ. हमने कौन से कंसेप्ट किया अभी तक? एक तो एनटीडी. व्हाट इज एनटीडी? बिजनेसमैन अलग है. कॉस्ट. फिर हमने देखा कॉस्ट, जो भी खर्चा हो रहा है, एड अप. और फिर मार्केट वैल्यू चेंज हो तो उसको चेंज नहीं करना है, वैसे ही रखना है. मैचिंग देखा हमने. व्हाट इज मैचिंग? इनकम और एक्सपेंस को मैच करो. 6 महीने की इनकम, 6 महीने के एक्सपेंस. 12 महीने की इनकम, 12 महीने. जितना परचेज उतना ही सेल, उतना ही क्वांटिटी, न ज्यादा ना कम. तो ये आप अपने प्रॉफिट कंपेयर कर पाओगे. बराबर है. और एक देखा था अप्रूवल. अभी देख रहे हैं. और एक कितना ही देखे थे ना, 3 ही देखे. चौथा कंसेप्ट बता रहा हूँ, अप्रूवल कंसेप्ट. व्हाट इज अप्रूवल कंसेप्ट? सुनना ध्यान से. वी विल शो अवर एक्सपेंसेस एंड इनकम्स व्हेनेवर वी वांट टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस. वी विल शो अवर expenses and incomes on earned and incurred basis, not on paid or received basis. We have to disclose our expense and incomes on earned and incurred basis, not on paid or received basis. Earned and incurred का मतलब क्या? For example, मेरे स्टोर में जो नटू काका और बागा जेठालाल के 2 एम्प्लॉइज हैं. दोनों की मिला के सैलरी हो रही है सपोज साल की 1 लाख रुपीज. साल की सैलरी हो रही है 1 लाख रुपीज. ओके. और मैंने उनकी सैलरी पे की है 80,000. आई हैव पेड देयर सैलरी ओनली 80,000. काम उन्होंने 1 लाख का किया है.
काम उन्होंने 1 लाख का किया, लेकिन सैलरी कितनी पे की है मैंने? 80,000. सपोज मैं 1 लाख ना दिखा के मेरी सैलरी एक्सपेंस दिखा दूं 80,000. 1 लाख ना दिखा के मेरा सैलरी एक्सपेंस दिखा दूं कितना? 80,000. सपोज पेड है ना, पैसे तो दिए हैं 80,000, देने थे 1 लाख, दिए 80,000, 20,000 का रिकॉर्ड ना करूं सब तो लोचा क्या होगा? इस साल तो चलो 80,000 कर दिया, नेक्स्ट ईयर भी मैं बोला चलो 80 ले लो, बाद में नेक्स्ट ईयर दूंगा, तो नेक्स्ट ईयर भी 80 रिकॉर्ड कर दिया. उसका नेक्स्ट ईयर वो लोग चढ़ गए, बोला नहीं अभी तो हमें पैसे चाहिए, वो जो 1 लाख है ये साल का वो भी दो और लास्ट 2 साल के 2020 पेंडिंग है वो भी दे दो. तो 1,40,000 दे दिया मैंने थर्ड ईयर में. तो हुआ क्या सीन? फर्स्ट ईयर आई गेव देम सैलरी ऑफ 80. तो सपोज मैंने 80 रिकॉर्ड किया, सेकेंड ईयर भी मैंने 80 दिया तो मैंने 80 रिकॉर्ड किया, थर्ड ईयर मैंने कितना दिया? 140 दे दिया. अभी सिचुएशन क्या हुई? फर्स्ट ईयर सैलरीज एंड एक्सपेंस कम दिखा तो प्रॉफिट कंपैरेटिवली बढ़ जाएगा. सेकेंड ईयर भी सैलरी कम दिखा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा. थर्ड ईयर सैलरी ज्यादा दिखा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा. तो मेरे को क्या लगेगा? धंधा पहले 2 साल तो अच्छा चल रहा था, लेकिन थर्ड ईयर खराब हो गया. बट इज दैट द सिचुएशन? इज बिजनेस इज डूइंग गुड और बैड इन एनी ऑफ दीज ईयर्स? वर्क तो उतना ही हुआ है, काम तो उतना ही हुआ है, तो प्रॉफिट तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होना चाहिए था. लेकिन गलत सिग्नल मिलेगा आपको, खुद को गलत सिग्नल मिलेगा, आपको पता नहीं चलेगा आपके प्रॉफिट्स क्यों बढ़ रहे हैं. क्यों? देखो प्रॉफिट बढ़ने चाहिए और कम भी हो सकते हैं, लेकिन किस लिए बढ़ने चाहिए? आपका गुड्स बेचना, सेल्स और परचेज वो बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा तो सही बात है. सेल्स परचेज घटा, प्रॉफिट घटा, सही बात है. लेकिन ये तो आपने सैलरी गलत रिकॉर्ड कर दी है. एक्चुअली काम कितने का हुआ था फर्स्ट ईयर? 1 लाख का. तो रिकॉर्ड भी कितना करना चाहिए? 1 लाख. तो आप क्या करते हो? सैलरी 80 प्लस 20,000 आप दिखा दो एज आउटस्टैंडिंग, जो देना. सिमिलरली सेकेंड ईयर भी मैं 80 नहीं करूंगा, 80 प्लस 20 आई विल शो इट एज आउटस्टैंडिंग सैलरी. एंड थर्ड ईयर 140 नहीं करूंगा मैं, इनकी सैलरी 1 लाख ही होगी और जो 40 मैंने पे किया ना 2 साल की पेंडिंग, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी ले जाएगी, विच इज अ लायबिलिटी. आउटस्टैंडिंग सैलरी इज अ लायबिलिटी. इट इज वेरी सिमिलर टू क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स. आई टेल यू हाउ. अभी आपने देखो एडवर्टाइजमेंट आउटस्टैंडिंग का तो क्या एंट्री मारा है? एडवर्टाइजमेंट टू, ये क्या है? पेड नहीं है, ड्यू है, देना. मतलब एक्सपेंस तो बढ़ गया, एक्सपेंस का टाइम आ गया, लेकिन पैसा देना बाकी है. तो लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट, एक्सपेंस बढ़ा दो. सिमिलरली इधर एंट्री होगा सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 20,000. मतलब एक्सपेंस तो बढ़ा लेकिन पैसा देना बाकी है, तो लायबिलिटी बढ़ी. तो पहले साल भी सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, दूसरे साल भी सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, तीसरे साल आप जब चुकाओगे ना, ये 40,000 भी चुका रहे हो ना 1 लाख के साथ, तो सैलरी टू कैश विल बी ओनली 1 लाख. सैलरी तो 1 लाख से ही डेबिट होगा, बाकी ये जो 40 आप चुका रहे हो ना, ये क्या चुका रहे हो? आउटस्टैंडिंग, विच इज अ लायबिलिटी. तो लायबिलिटी चुकाने की एंट्री होगी आउटस्टैंडिंग सैलरी टू कैश. आउटस्टैंडिंग सैलरी टू. तो बेसिकली आपने किया क्या? ये तो चलो नॉर्मल सैलरी थी 1 लाख, आपने किया क्या? सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी टू कैश. तो ये कट हो रहा है, देख रहा है? ये डेबिट क्रेडिट क्रेडिट. तो नेट इफेक्ट क्या बना? सैलरी टू. जैसे प्रीपेड में मैंने बताया था, याद होगा तो, प्रीपेड में क्या एंट्री करते हो? प्रीपेड एक्सपेंस टू कैश, और फिर जब एडजस्ट करते हो तभी एक्सपेंस टू प्रीपेड एक्सपेंस. यहां पे पहले क्या करना है? एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्योंकि देना बाकी है. एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि टाइम आ गया, काम हो गया, एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं करोगे ना तो ये लोचा होगा, तो प्रॉफिट्स विल बी डिस्टॉर्टेड. तो आपको पता नहीं चलेगा प्रॉफिट्स बढ़ रहा है कम हो रहा है किस रीजन से. समझाया? तो ये भी मैचिंग को कॉम्प्लीमेंट्री कंसेप्ट है, इसको बोलते हैं अक्रूवल. अक्रूवल का मतलब है कि एक बार एक्सपेंस का टाइम आ जाए, एक बार एक्सपेंस का टाइम आ जाए, एक्सपेंस इनकर हो जाए, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होना ही चाहिए. चाहे पैसे दो चाहे ना दो, बाद में दो, चलेगा. एक्सपेंस का टाइम आए तो एक्सपेंस को डेबिट करना पड़ेगा. तो सैलरी का टाइम आ गया, काम हो गया, सैलरी डेबिट कर दो. अभी पैसे दिए हैं सपोज, तो सैलरी टू कैश.
अगर पैसे देने बाकी हैं तो सैलरी टू आउटस्टैंडिंग, बाद में रखो, पेंडिंग रखो, लेकिन सैलरी को तो एक चोट डेबिट कर ही डाल। एडवर्टाइजमेंट ड्यू मतलब कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट हो गया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डिस्प्ले कर दिया आपने, इनकर हो गया है, तो एडवर्टाइजमेंट डेबिट होना ही चाहिए। पैसे दिए हैं तो टू कैश, देने बाकी है तो टू आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट। समझ में आया? सेम कंसेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर इनकम ऑल्सो। इनकम कमा ली है, अर्न कर ली है, तो रिकॉर्ड करनी ही है। अर्न कर ली है तो रिकॉर्ड होनी ही चाहिए बुक में, इनकम क्रेडिट होनी ही चाहिए। और पैसे आ गए तो कैश टू इनकम, और पैसे आने बाकी हैं आउटस्टैंडिंग तो आउटस्टैंडिंग इनकम टू इनकम। परफेक्ट, आउटस्टैंडिंग इनकम टू इनकम। आउट इनकम बढ़ा तो क्रेडिट, लेकिन पैसा आना बाकी है, आउटस्टैंडिंग इनकम इज एन एसेट, इट्स एन एसेट। जैसे ये लायबिलिटी है, ये एसेट, एसेट बढ़ा तो डेबिट, पैसा लेना बाकी है। इन दोनों के बहुत सारे एग्जांपल आपने किए हुए हैं। व्हाट आर दे, यू नो? कुछ याद आ रहा है? दिस इज नथिंग बट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड दिस इज नथिंग बट आउटस्टैंडिंग इनकम। आप ये छोड़ देते हो कि एंट्रीज करते हो? करते हो ना? पैसे तो आए नहीं है, पैसे तो दिए नहीं है, फिर भी रिकॉर्ड करते हो ना एक्सपेंस इनकम। क्यों? अक्रूवल सिस्टम। दैट इज द रीजन फॉर अक्रूवल सिस्टम, दैट वी रिकॉर्ड कैश परचेज ऑल्सो, वी रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज ऑल्सो। मतलब परचेज एक्सपेंस तो बढ़ा, लेकिन पैसा देना तो लायबिलिटी बढ़ी। तो जब चुकाते हो तभी क्या लिखते हो? क्रेडिटर को पे ऑफ करते हो तभी क्रेडिटर टू कैश। वैसे ही आउटस्टैंडिंग सैलरी, सेम कंसेप्ट। सिमिलरली डेटर टू सेल, इनकम बढ़ा लेकिन पैसा लेना बाकी है, एसेट बढ़ा। फिर जब पैसे आते हैं डेटर से तभी क्या लिखते हो? कैश टू डेटर। कैश बढ़ा, डेटर, तो यहां से जब पैसे आएंगे तभी क्या लिखो? इनकम टू आउटस्टैंडिंग। क्या? सेम। डेटर से आता है तो क्या लिखते हो? कैश टू डेटर। ये आउटस्टैंडिंग इनकम क्या है? ये डेटर है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है? ये क्रेडिटर है। एक ही तो चीज है। क्रेडिटर मीन्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, डेटर मीन्स आउटस्टैंडिंग इनकम। So what entry you pass when you receive money from debtor? Cash to debtor. So what entry you pass when you receive money? Cash to outstanding income. समझ में आया? क्यों रिकॉर्ड किया जाता है? अक्रूवल। अक्रूवल क्यों फॉलो किया जाता है वो समझा? अक्रूवल फॉलो न करने के साइड इफेक्ट पता चले। एक्सपेंस इनकम फ्लक्चुएट हो जाएंगे, प्रॉफिट भी फ्लक्चुएट हो जाएगा, जबकि काम उतना ही हुआ है। मेरी फीस साल की सपोज आप सबकी 10,000 रुपीज है, आप 50 लोगों ने मुझे 10,000 रुपीज दिए तो 5 लाख रुपीज हो गई, कैश टू फीस 5 लाख। लेकिन सपोज 10 लोगों ने फीस देनी बाकी है, लेकिन कमा तो लिया मैंने, पढ़ाई तो करवा ली है, मेरा काम तो हो गया है, तो मेरी अर्न इनकम कितनी है? 4,90,000 है कि 5 लाख? सॉरी 4,85,000 4 लाख 4 लाख है, 10 लोगों की बाकी